Hello everyone, welcome back. So today in this session, we are going to discuss a very important topic from UPSC syllabus of agriculture option, that is insect pest of agricultural crops. Now, frequently students they ask regarding this portion because many students from non-agricultural background or non-biology background, they are not used to study the scientific names and remember them, right? Now even for the biology students it is difficult, right? So they usually ask, sir, how to prepare, whether we can skip this portion, it is very difficult for us, I'm not able to remember all the scientific names and all that. Okay, so in this video, I'm going to give you some tips regarding how to study or how to prepare this particular topic. All right. Now, regarding the scientific names, there is no shortcut. One thing what you can do is you can prepare a list of scientific names of the pest and regularly just look at it for few seconds. Okay, during the lunch or when you have free time, just have a look at them, just go through the scientific name once. Okay, so you can do this crop by crop. So write down the important pests and their scientific names for mango or regarding horticultural crops. So for mango, citrus, banana, ऐसे उनके scientific names लिखो and for few days, at least for a week or two, just उनके scientific names, whenever you have a break, टी ब्रेक, जब भी एक बार उनके साइंटिफिक नेम्स जस्ट गो थ्रू देम. सो जब ऐसे रोज देखते रहोगे ना, तुम्हारे जुबान पे आ जाएगा, देन यू विल रिमेंबर देम. शॉर्टकट कुछ नहीं है, देयर इज नो शॉर्टकट टू साइंटिफिक नेम्स. यू हैव टू रेगुलरली लुक एट देम जस्ट वंस, at least for 30 seconds or for 1 minute, just go through all the scientific names quickly. So अगर ऐसे करते रहोगे तो within 3 or 4 months you will remember all the scientific names for at least the important crops. कोई शॉर्टकट तो नहीं है इसका, everybody has to go through this, सबको ये करना ही पड़ेगा. Now in the examination, while you are writing the management part, management of insect pests, they will give you randomly, they will give you 2 or 3 pests and they will ask you to write the damage, nature of damage or damaging symptoms and management of these particular pests. So how do you approach that particular question? उस क्वेश्चन में क्या क्या लिखना है, what you have to write in that particular question, उसका आंसर कैसे करोगे, कौन से की पॉइंट्स होंगे and what are the most important points. So those things we will discuss and I will give you some tips कि nature of damage कैसे याद रखोगे, how do you remember the nature of damage. For that we have few tricks that we'll see in few minutes, right? So this is our topic for today, insect pest of agricultural crops. Now before we start the topic, let us look at few previous years questions so that you will understand what kind of questions are asked, right? So this is a previous years question and mainly जो है previous years questions mainly Indian Forest Service के एग्जाम में आता है. I mean from last 2-3 years यूपीएससी में तो नहीं पूछ रहा है. ओके, जनरली यूपीएससी में ये क्वेश्चंस अब कम हो गए हैं. अर्लियर दे यूज्ड टू कंबाइन एंटोमोलॉजी एंड पैथोलॉजी पार्ट एंड दे विल गिव यू क्वेश्चंस लाइक राइट नेम 4 इंपॉर्टेंट इंसेक्ट पेस्ट ऑफ मैंगो एंड 4 इंपॉर्टेंट डिजीज ऑफ मैंगो एंड देयर मैनेजमेंट. तो ऐसे 20 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया, कभी पहले ऐसे होता था. रिसेंटली तो क्वेश्चंस नहीं आया है लास्ट 2-3 ईयर से. फॉरेस्ट सर्विस में यस दे हैव बीन आस्किंग, तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो मेनली फॉरेस्ट सर्विस से आया है. ठीक है, सिविल सर्विस में लास्ट 2 ईयर से तो मैंने देखा नहीं, बहुत कम, कभी कोई रेयरली एक क्वेश्चन. एंड जनरली द वेटेज विल आल्सो बी अराउंड 10 मार्क्स और 15 मार्क्स. 10 मार्क्स या 15 मार्क्स का वेटेज होता है, उससे ज्यादा का वेटेज नहीं होगा. 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा या फिर 15 मार्क्स. दे विल नेम 3, दे विल गिव यू 3 पेस्ट and for each pest they will allot 5 marks. तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, so let us look at few questions from previous years.
So write in detail about the causal organism, nature of damage and management of the following insect pest. तो scientific name पूछा है तुमको, you have to start with the scientific name in every case. So nature of damage, damage symptoms तुमको बताना है, and you have to write the management. So you have to focus on these three parts for these pests: cotton, white fly, so Bemisia tabaci है, and Bemisia tabaci is the scientific name. Cotton mealy bug है, so this is Phenacoccus solenopsis. Phenacoccus solenopsis है, Phenacoccus solenopsis. चिकपी पॉड बोरर या फिर ग्राम पॉड बोरर बोल सकते हो, दिस इज हेलिकोवर्पा आर्मीजरा. सो ये तीनों को लिखना है. ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन था. 3 into 15, 3 into 5, एक जो है पेस्ट 5 मार्क्स का. नाउ अनदर क्वेश्चन वाज डिस्क्राइब द बायोलॉजी. सो ये स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट के बारे में क्वेश्चन आया था. ओके, डिस्क्राइब द बायोलॉजी, nature of damage and management of the following. So lesser grain borer, so Rhizophorta dominica, pulse beetle, Calosobrochus chinensis, and rice moth, Corsaria cephalonica. तो ये तीनों जो हैं इनके बारे में, इनका बायोलॉजी के बारे में लिखना है. लाइफ साइकिल कितना टाइम का है, वो क्या है, हाउ डज इट लुक एंड ऑल दैट, कलर उसका साइज कितना होता है, तो उसका लाइफ साइकिल कितने दिन में खत्म होता है, एग स्टेज कितने दिन रहेगा, that part, biology part. Then nature of damage is damaging symptoms, and management part, how do you manage this particular pest. So this question was for 7 marks. ये 4 marks का दिया था, ये 3 marks का दिया था. There was another, but वो disease के अंदर आ रहा था तो मैंने वो include नहीं किया. That was a disease. Okay. So describe the systematic position, कि वो कौन से ऑर्डर से बिलोंग करता है. ओके, क्लास इंसेक्टा है, बट ऑर्डर्स, देयर आर मेनी ऑर्डर्स अंडर क्लास इंसेक्टा. सो नेचर ऑफ डैमेज, डैमेज सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट ऑफ द फॉलोइंग: चिल्ली थ्रिप्स, स्किटोथ्रिप्स डोर्सालिस. तो चिल्ली थ्रिप्स के बारे में दिया है, तो ये थाइसोनॉप्टेरा से बिलोंग करता है. एंड फॉल आर्मी वॉर्म, ये नॉक्टुइडे है, दिस इज स्पोडोप्टेरा. ओके, सो स्पोडोप्टेरा ये मेनली तुम्हारा जो है ऑस्ट्रेलिया में एंड इन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, वहां पे मेज में बहुत ही मेजर पेस्ट है, इवन इन यूएस. ठीक है. सो राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन इंसिडेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फ्रूट फ्लाई इन कुकुरबिट्स एंड गुआवा. सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन सिविल सर्विसेज. ये सिविल सर्विस का क्वेश्चन है, तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है, फ्रूट फ्लाई का डैमेज कैसे होता है. सो रिसेंटली 2-3 साल से बहुत कम क्वेश्चंस आए हैं सिविल सर्विस में, इसका वेटेज बहुत कम हो गया है. जनरल एंटोमोलॉजी पार्ट में ज्यादा फोकस हो रहा है आजकल. इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ये टाइप का क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. सो जनरली 10 to 15 मार्क्स, दैट इज द वेटेज. मैक्सिमम उतना मार्क्स का देगा. ओके, नाउ So under class insecta there are several orders, बहुत सारे orders हैं, but जो agriculturally important orders हैं, so the orders which are mainly insect pest, which are the main insect pest, वो there are only few orders, बहुत कम orders हैं जो insect pest की तरह काम करते हैं. Okay, which are the insect pest. So first जो बहुत ही important order है, that is Lepidoptera, जिसमें moths and butterflies आते हैं. Generally butterflies भी हैं पेस्ट. ओके, moths mainly, butterflies there are few butterflies which are insect pest, moths are the main pest. ठीक है. So moths and butterflies they come under Lepidoptera. Then we have Coleoptera, जिसमें तुम्हारे beetles and weevils हैं. So weevils have the snout. beetles और weevils में differentiation का एक ही main है part जो है snout होता है weevils में. So beetles and weevils they are covered under Coleoptera. So ये important है. Right, Hemiptera. So in case of Hemiptera में sucking insects हैं, piercing in sucking mouth parts हैं इनमें. So white flies are included. So Hemiptera में बहुत सारे different types of insects हैं which are pest. White flies हैं, then you have aphids,
okay, jacids, leaf hoppers, plant hoppers, mealybugs, scale insects, psyllids, and so on. There are many insects under Hemiptera which are insect pest. So Hemiptera, then Thyssanoptera में mainly thrips है. So under Thyssanoptera we have mainly thrips. So thrips में lacerating, खुरेदते हैं वो, खरोचना, खुरेदने या खरोचना बोलते हैं ना, lacerating mouth parts होते हैं उनमें. So they also suck the sap but they don't pierce, they lacerate the tissue. Then we have Diptera जिसमें flies आते हैं, flies and mosquitoes. Okay, so उसमें fruit flies, midges, gall midges, shoot fly, stem fly, they all come under. Flies जितने भी हैं they come under Diptera. ये मेन ऑर्डर्स हैं. अपार्ट फ्रॉम दीज ऑर्डर्स तुमको ऑर्थोप्टेरा भी है जिसमें तुम्हारा ग्रास होपर्स, लोकस्ट, क्रिकेट्स वो आते हैं, बट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो. ओके, सो दीज आर द मेनली ऑर्डर्स विच यू आर फोकसिंग ऑन. जो भी तुम इंसेक्ट पेस्ट पढ़ोगे तो वो इनमें से ही किसी ऑर्डर में बिलोंग करता होगा. मेनली दीज थ्री. उसके बाद डिप्टेरा, थाइसोनॉप्टेरा में ओनली थ्रिप्स आर देयर. ओके, ऑर्थोप्टेरा हम लोग डील नहीं करेंगे जिसमें ग्रास होपर्स एंड लोकस आते हैं. वी विल नॉट डील विद दैट. उसमें इंसेक्ट पेस्ट में ज्यादा नहीं आता है वो. ओके, सो दीज आर द डिफरेंट ऑर्डर्स. तुमको ये देखना है कौन से ऑर्डर में कौन सा पेस्ट आता है, ये एक चीज तुमको याद रखना है. सो मॉथ्स एंड बटरफ्लाई दे कम अंडर लेपिडोप्टेरा, क्योंकि वो सिस्टमैटिक पोजीशन अगर पूछेगा ना, पहले क्वेश्चन में पूछा था राइट द सिस्टमैटिक पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इंसेक्ट पेस्ट, तो कौन से ऑर्डर से बिलोंग करता है ये भी पता होना चाहिए. समटाइम्स दे में आस्क सिस्टमैटिक पोजीशन क्या है, सो कौन से ऑर्डर से बिलोंग करता है, एंड समटाइम्स ऑर्डर के बाद भी कौन से फैमिली से बिलोंग करता है ये भी पता होना चाहिए. कुछ कुछ केसेस में यू नीड टू इवन रिमेंबर द फैमिली. देन अच्छा, नाउ रिगार्डिंग द मैनेजमेंट पार्ट वी विल सी. मैनेजमेंट में हम लोग डिफरेंट मेथड्स हैं. इफ यू स्टडी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट तो उसमें कल्चरल मेथड्स हैं, लैंड प्रिपरेशन, स्पेसिंग, वो सब, इरिगेशन एंड ऑल दैट पार्ट आता है. देन वी हैव फिजिकल एंड मैकेनिकल मेथड्स, हैंड पिकिंग हो गया या फिर लाइट ट्रैप्स हो गया, टेम्परेचर अल्टरेशन ऑन ऑल दैट. Then we have biological methods and chemical methods. So management part we will look at it later on कि क्या क्या पॉइंट्स तुमको लिखना है, कौन सा सीक्वेंस पे तुमको लिखना पड़ेगा. बट बिफोर वी डू दैट, इन योर आंसर नेचर ऑफ डैमेज या फिर डैमेज सिम्टम्स एक पार्ट आता है. डैमेज सिम्टम्स या नेचर ऑफ डैमेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ रिगार्डिंग दैट, हाउ डू यू स्टडी दैट, कि उसको कैसे पढ़ना है. व्हेन यू लुक एट ए पेस्ट, जैसे अगर तुम्हारा कॉटन व्हाइट फ्लाई जैसा था, कॉटन व्हाइट फ्लाई का तुम्हारा डैमेज सिम्टम्स पढ़ रहे हो, सो उसमें होगा कॉटन व्हाइट फ्लाई, बेमेसिया तबासी, डैमेज सिम्टम्स. सो डैमेज सिम्टम्स में क्या होगा, नेचर ऑफ डैमेज में adults and nymphs, the language will be like this: adults and nymphs suck the sap from the under surface of the leaf and from the tender parts of the plant. Okay, ultimately the vigor and vitality of the plant will be reduced, folding of leaves, yellowing, ये सब तुमको symptoms में होगा. Now ये symptoms समझने के लिए, to understand these symptoms, रट्टा नहीं मार सकते हो, blindly you cannot go and cram. ठीक है, blindly cramming possible नहीं है. So पहले तुमको समझना पड़ेगा, okay, जो लैंग्वेज है adults and nymphs suck the sap, ये कहां पर यूज करेंगे हम लोग, कौन से केस में ये वाला लैंग्वेज करेंगे, यूज करेंगे. एंड इन सम केसेस लाइक लेपिडोप्टेरा, वहां पर मेनली लार्वा इज द डैमेजिंग स्टेज, वहां पर लार्वा eats the leaves and it will make the holes into the fruits and eats away the internal parts. तो वहां पर biting and chewing type of mouth parts हैं, वो खाता है. So हर जगह पे depending upon what order, to what order that pest belongs, उसका डैमेज नेचर अलग होगा क्योंकि उसके माउथ पार्ट्स अलग हैं. सो बिफोर यू एंटर इनटू इंसेक्ट पेस्ट, तुमको माउथ पार्ट्स के बारे में पढ़ना है पक्का. सो एंटोमोलॉजी का किसी भी बुक में, जनरल एंटोमोलॉजी की बुक में माउथ पार्ट्स विल बी देयर. सो कौन से ऑर्डर्स में कौन से माउथ पार्ट्स हैं ये तुमको जानना जरूरी है. सो इफ यू स्टडी द माउथ पार्ट्स एंड कौन से माउथ पार्ट्स किस ऑर्डर में है ये तुमको अगर पता है, उसमें भी हर लाइफ साइकिल के हर स्टेज में एक ही माउथ पार्ट्स नहीं होता है. लाइक इन द केस ऑफ लेपिडोप्टेरा,
द लार्वा या फिर कैटरपिलर जो बोलते हैं, कैटरपिलर विल हैव बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स, whereas in case of adults they have siphoning type of mouth parts. ओके, कोलियोप्टेरा में ऐसा नहीं है. कोलियोप्टेरा में बोथ ग्रब इज द लार्वा, लार्वा को टेक्निकली हम लोग ग्रब बोलते हैं. ग्रब एंड एडल्ट्स बोथ हैव बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स. तो वहां पर एडल्ट्स एंड ग्रब्स जो है दोनों का एक ही टाइप ऑफ डैमेज सिम्टम होगा. ओके, सो डिपेंड्स कौन से ऑर्डर है, बिकॉज एवरी ऑर्डर हैज अ डिफरेंट टाइप ऑफ माउथ पार्ट. तो माउथ पार्ट्स के बारे में स्टडी करो पहले, फिर तुम इंसेक्ट पेस्ट का जो डैमेजिंग है वो तुमको इजी हो जाएगा. यू कैन इजीली study them. So let us look at what type of mouth parts we have in the most important orders which are acting as insect pests. So things you need to study, things to study or points to remember before you start preparing insect pest. क्या चीजें तुमको याद रखना है insect pest में जाने से पहले. Okay, first thing, okay, so पहला ऑर्डर क्या है? Lepidoptera. So Lepidoptera में you have butterflies and moths, right? So Lepidoptera में कौन से mouth parts हैं? What type of mouth parts do we have in Lepidoptera? So Lepidoptera में we have the damaging stage, जो main damaging stage है Lepidoptera में, that is larva, जिसको हम लोग caterpillar बोलते हैं. Okay, so larva is the damaging stage, caterpillar is the damaging stage. Mainly in few exceptional cases we have adults as damaging stage. Adults generally damaging stage नहीं होता है. Adults harm नहीं करते crop को. Adults they just lay the eggs and those eggs will hatch and larva will come and larva will be the damaging stage. Adults are damaging only in few cases. Like तुम्हारा citrus fruit sucking moth है, okay? या castor semilooper है, Achaea janta, तो वहां पर वो भी तुम्हारा citrus fruits को suck करता है. तो there are only few cases where adults act as insect pest. In case of Lepidoptera, mainly it is the larva. Mainly larva is the damaging stage. So caterpillar is the main damaging stage. Adults are damaging only in few cases. जैसे citrus fruit sucking moth है. So larva में कौन सा mouth parts है? Biting and chewing. So it bites and it chews. Biting and chewing type of mouth parts in the caterpillar or larva. Adults में कौन सा mouth parts है? Siphoning. Siphoning में क्या होता है? They have a elongated proboscis. Okay, mouth parts are modified into a sucking organ called proboscis, and it will straighten up while feeding. It will be needle like and it will puncture the citrus fruits and it will suck the juice. थोड़ा सा juice पी के हट जाता है, but the thing is जो उसका covering था, जो protection था citrus का, वो तो damage हो गया. You have punctured a hole. Now bacteria and fungus, secondary infection will damage the crop. इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वो जो फ्रूट्स हैं फॉर मेनली फॉर एक्सपोर्ट पर्पस जो है, उसको हम लोग पेपर से या पॉलिथीन से कवर कर देते हैं, सो दैट एडल्ट मॉथ्स डू नॉट डैमेज देम. सो बाइटिंग एंड चिविंग माउथ पार्ट्स इन लार्वा केस. इन केस ऑफ एडल्ट्स वी हैव साइफनिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स, ये याद रखना. नाउ इन केस ऑफ कोलियोप्टेरा जिसमें बीटल्स एंड वीविल्स आते हैं, वहां पे बोथ एडल्ट्स एंड लार्वा हैव बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स. दोनों में बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स हैं. ओके, सो ग्रब एंड एडल्ट. सो जब तुम पढ़ोगे तो देखा उसमें लिखा होगा बोथ एडल्ट्स एंड ग्रब्स दे च्यू ऑन द लीव्स, दे ईट अवे द एंटायर लीफ लैमिना लिविंग द मिडरिब्स. इन सम केसेस मिडरिब को भी खा जाता है. सो ऐसा लैंग्वेज होगा. सो बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स बोथ इन द केस ऑफ एडल्ट्स एंड ग्रब्स. सो कोलियोप्टेरा का जो लार्वा है उसको हम लोग टेक्निकली ग्रब बोलते हैं. ओके, देन हेमिप्टेरा. हेमिप्टेरा के केस में पियर्सिंग एंड सकिंग. सो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स. ओके, सो यहां पर जो मैंडिबल्स हैं दे आर मॉडिफाइड इनटू सॉर्ट लाइक स्ट्रक्चर्स जो कट करने के लिए हैं. मैक्सिले दे हेल्प इन ओपनिंग द वुंड एंड प्रोबोसिस विल सक द जूसेस. मस्किटो में भी ऐसा ही होता है. सो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स दे विल सक द सैप फ्रॉम द टेंडर पार्ट्स. क्योंकि अगर हार्ड पार्ट्स होगा, जो पार्ट्स सन के साथ फेसिंग है, सो लीव्स का जो अपर सरफेस है विच इज फेसिंग द सन, उसका जो क्यूटिकल है या फिर वो जो लीफ सरफेस है वो हार्ड होता है. जो नीचे वाला सरफेस है दैट विल बी सॉफ्ट. तो जनरली ये जितने भी सकिंग इंसेक्ट्स हैं दे आर फाउंड ऑन द लोअर पार्ट्स एंड ऑन द टेंडर पार्ट्स. जो टिप्स हैं वहां पर मिलते हैं तुमको टेंडर पार्ट्स में, बिकॉज इट इज इजी टू पंक्चर देम एंड सक द सैप. सो जब
सपोज ऐसे लीफ लैमिना है, सो फॉर द लीफ टू फुल्ली ओपन, पूरा ऐसे पूरा फुल ओपन करने के लिए क्या होना चाहिए? मेन थिंग इज दैट सफिशिएंट वाटर शुड बी देयर, तभी तुम्हारे लीव्स में टर्जिडिटी होगा एंड द लैमिना विल बी ओपन। जब तुम्हारा पानी कम होता है तो क्या होता है? मुरझाने लगता है, विल्टिंग, लीव्स स्टार्ट विल्टिंग, राइट? दैट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वाटर। तो पूरा लीफ ओपन होने के लिए पानी चाहिए। नाउ व्हाट द इंसेक्ट्स आर डूइंग, दे आर कंटिन्यूअसली सकिंग द सैप, पानी निकल रहा है, द सैप हैज बीन सक्ड फ्रॉम द टिश्यू। तो क्या होता है? लीव्स ना फोल्डिंग होने लगता है, अपवर्ड कर्लिंग ऑफ द लीव्स, ऐसे लीफ कर्ल होने लग जाता है। तो दैट इज वन ऑफ द डैमेजिंग सिम्टम। येलोइंग होने लगता है, प्लांट पूरा ऐसा लगता है कमजोर हो गया, विगर एंड वाइटैलिटी ऑफ द प्लांट विल बी लॉस्ट। सो पियर्सिंग इन सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। लैंग्वेज कैसा होगा जब तुम पढ़ोगे? adults and nymphs suck the sap from the tender parts of the plant, leading to the curling of the leaves, losing of vigor and vitality of the plant, yellowing of the leaves, ultimately shedding होने लग जाता है। तो उस तरह के symptoms तुम पढ़ोगे, damaging nature। Now coming to diptera, diptera में it is the larva। larva को हम लोग क्या बोलते हैं? in case of diptera we call it maggot। so इसमें legs नहीं होते, it wriggles, रेंगता है ये, it does not have legs। जो लार्वा है तुम्हारा, मेनली जो कैटरपिलर है, इन केस ऑफ लेपिडोप्टेरन लार्वा, इट हैज 3 पेयर्स ऑफ ट्रू लेग्स। फिर लेग लाइक अपेंडेजेस होते हैं, वो लेग नहीं है, ट्रू लेग्स तो 3 ही होते हैं। बाद में फिर जो पीछे एब्डोमिनल पार्ट्स में है, दे आर लेग लाइक अपेंडेजेस बट दे आर नॉट ट्रू लेग्स। ओके, सो इधर लेग्स ही नहीं होते, मैगेट्स दे रिगल। ओके, सो मैगेट्स उनमें च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स होते हैं। दे डोंट बाइट, दे स्कूप द फूड इनटू देयर hook-like, in their mouth part they have hook-like organs which help in scooping the food into their mouth and they will chew it, खा लेते हैं। so maggots क्या करते हैं? what the flies do, जो flies है तुम्हारे, ये flies जाके अपने अंडे ना fruit के skin के ऊपर देते हैं। they will make a small depression on the epicarp of the fruit, fruit के छिलके पे थोड़ा सा depression करके वहां अंडे देते हैं। the maggot will hatch, it will bore a hole into the skin and enter into the pulp। एक बार पल्प के अंदर चले गए, जैसे मैंगो है, अंदर घुस गया, then it will start feeding on the pulp, खा लेता है। अब अंदर घुसता जाएगा एंड अब खा रहे हो तो निकालना भी पड़ेगा, it has to excrete, it will excrete in the same fruit, बाहर नहीं करता, वो अंदर ही खाता जाता है and it will make tunnel and it will eat and excrete in the fruit। so fruit will be transformed into a loose mass of liquid, है ना, ऐसे पिचकने लग जाता है एंड बैड स्मेलिंग लिक्विड बन जाता है, बिकॉज इट हैज बीन एक्सक्रीटिंग एंड बैक्टीरियल, एंड बैक्टीरिया भी अंदर ग्रो होने लग जाएगा, इट विल डैमेज द फ्रूट, राइट। सो मैगेट्स च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स होते हैं, मैगेट इज द डैमेजिंग पार्ट। तो अगर ये तुमको याद है ना कौन सा डैमेजिंग स्टेज है और उसमें कौन सा माउथ पार्ट्स हैं, देन नेचर ऑफ डैमेज यू कैन इजीली स्टडी एंड रिमेंबर। तुमको याद है, ओके लेपिडोप्टेरा है तो लार्वा होगा जनरली डैमेजिंग, लार्वा में बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स होते हैं। अगर फ्लाई आया है, ओके कुकुरबिट फ्रूट फ्लाई, ओके फ्रूट फ्लाई है तो जनरली उसमें मैगेट होगा, मैगेट वो ड्रिल करके अंदर जाता है या बोर करके अंदर जाता है फ्रूट के अंदर, इट विल स्पॉइल द एंटायर फ्रूट बिकॉज इट विल एक्सक्रीट इन द फ्रूट इटसेल्फ। सो तुमको एक आइडिया मिल जाएगा, जैसे ही तुम बोलोगे नाम पढ़ोगे व्हाइट फ्लाई, ओके व्हाइट फ्लाई किसमें आता है? हेमिप्टेरा में आता है। हेमिप्टेरा में माउथ पार्ट्स कौन से हैं? पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। उसमें क्या होता है? निम्फ्स एंड एडल्ट्स बोथ आर डैमेजिंग स्टेज, so adults and nymphs suck the sap from the tender part of the plant। तो तुम्हारे दिमाग में वो एकदम से क्लिक हो जाएगा when you study, अरे हाँ ये तो यही है, इजीली तुमको याद हो जाएगा। तो नेचर ऑफ डैमेज पढ़ने के लिए ये तुमको पता होना चाहिए। इफ यू नो दिस, नेचर ऑफ डैमेज विल बी वेरी इजी, राइट। सो साइंटिफिक नेम्स का कुछ नहीं कर सकते, साइंटिफिक नेम्स से तुमको रट्टा मारना ही पड़ेगा। नाउ फॉर दैट वन ट्रिक इज राइट द साइंटिफिक नेम्स। अगर तुम टेबल पे पढ़ते हो तो नीचे वहां पर रख लो, वॉल के पास में तुम्हारा टेबल है तो वॉल पे चिपका लो, पैड है तो पैड पे चिपका लो, डू समथिंग। और मोबाइल का वॉलपेपर लगा लो, मेक ए वॉलपेपर ऑन योर मोबाइल, फोटो खींच के वॉलपेपर कर लो, ताकि जब भी तुम देखो ना एक बार देखते रहो, रेगुलरली तुम्हारे आंखों के सामने होना चाहिए, स्पेलिंग करेक्ट होना चाहिए, तो तुमको याद रहेगा। फिर प्रोनाउंस इट व्हाइल रीडिंग, जस्ट प्रोनाउंस इट सो दैट यू विल रिमेंबर द स्पेलिंग्स आल्सो। उसका तो कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ, नेचर ऑफ डैमेज को याद रखने के लिए यू हैव टू रिमेंबर दिस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप, ओके व्हाट डू यू राइट इन एन आंसर?
व्हाट यू इंक्लूड इन योर आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या तुमको इंक्लूड करना है भैया। सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज द साइंटिफिक नेम। विदाउट साइंटिफिक नेम आई वुड सजेस्ट कि यार वो अटेम्प्ट मत करना, क्योंकि 10 मार्क्स का अगर तुम्हारा क्वेश्चन है ना, अगर तुम्हारा 10 मार्क्स का पूछा है, तो अगर तुमने साइंटिफिक नेम लिखा है नहीं लिखा है ना, सो 10 में से 3 मार्क्स तो गए सोचो। सो ही विल बी इवैल्यूएटिंग योर आंसर फॉर 7 मार्क्स ओनली। तो 3 मार्क्स तो वैसे ही गए, क्योंकि ऐसा होता है रेज्यूमे दे रहे हो, सपोज यू आर गिविंग योर रेज्यूमे, रेज्यूमे में तुम्हारा नाम ही नहीं है, सो विदाउट योर नेम रेज्यूमे डजंट काउंट फॉर मच। तो साइंटिफिक नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई डिजीज है या फिर कोई इंसेक्ट पेस्ट है, साइंटिफिक नेम अगर नहीं आता है तो जनरली वो क्वेश्चन छोड़ता। अगर ये कंपलसरी पार्ट में है, फर्स्ट क्वेश्चन या फिफ्थ क्वेश्चन में आता है तो ओके, नाउ यू कांट डू एनीथिंग। पता है नहीं पता है साइंटिफिक नेम, आंसर तो लिखना ही पड़ेगा। अगर ऑप्शनल है, फर्स्ट एंड फिफ्थ में नहीं है, तो अवॉइड दैट क्वेश्चन और राइट सम अदर क्वेश्चन। अगर फर्स्ट एंड फिफ्थ में है तो साइंटिफिक नेम पता है या नहीं पता है तो लिखना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अदरवाइज साइंटिफिक नेम इज इंपॉर्टेंट। यू विल स्टार्ट विद द साइंटिफिक नेम। अगर उन्होंने पूछा है कि सिस्टमैटिक पोजीशन क्या है, देन ओनली यू मेंशन द ऑर्डर एंड फैमिली। अगर ऑर्डर और फैमिली तभी मेंशन करो, वरना जरूरत नहीं है, डोंट मेंशन दैट। सेकंड, नेचर ऑफ डैमेज या फिर डैमेज सिम्टम्स, कि अडल्ट डैमेजिंग स्टेज है या फिर लार्वा डैमेजिंग स्टेज है, उसका सिम्टम्स कैसे होता है। ओके, सम इंसेक्ट्स दे डैमेज बोथ एट वेजिटेटिव स्टेज एंड फ्लोरल स्टेज। तो वेजिटेटिव स्टेज में कौन सा डैमेज होता है, क्या डैमेज सिम्टम्स है, फ्लोरल स्टेज में क्या डैमेज सिम्टम्स है, फ्लावर्स को कैसे डैमेज करता है, फ्रूट्स को कैसे डैमेज करता है, दैट यू हैव टू राइट। थर्ड पार्ट इज मैनेजमेंट। सो योर आंसर विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सो मैनेजमेंट में जब आओगे, दिस इज मेन पार्ट मैनेजमेंट। सो डैमेज सिम्टम्स तो चार लाइंस में हो जाएगा, 3 to 4 पॉइंट्स। दोज वर 3 या 4 डैमेजिंग सिम्टम होते हैं मेनली। जब तुम डैमेजिंग सिम्टम हो जाएगा, मैनेजमेंट में आओगे तो मैनेजमेंट कैसे लिखोगे। मैनेजमेंट में भी एक सीक्वेंस है, यू हैव टू फॉलो दिस सीक्वेंस। ये सीक्वेंस को तुमको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। सो पहले कल्चरल मेथड से स्टार्ट करो। सो कल्चरल मेथड्स में जनरली रेसिस्टेंट वेराइटीज या कोई टॉलरेंट वेराइटीज है वो लिख सकते हो। फील्ड प्रिपरेशन में कोई अगर है, स्पेसिंग चेंजेस करने से तुम ह्यूमिडिटी डिक्रीज कर सकते हो, तो उससे पेस्ट मैनेजमेंट हो जाता है। ओके, सो कल्चरल मेथड्स you can do, you can mention कल्चरल मेथड अगर कोई है तो, वरना रेसिस्टेंट वेराइटी तो सब में होते हैं। इफ यू डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ रेसिस्टेंट वेराइटी, यूज रेसिस्टेंट वेराइटीज बोल के लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है इसमें। पर अगर रेसिस्टेंट वेराइटीज का नाम नहीं पता है तो गलत तो मत लिखना, गलत नाम मत लिखना, जस्ट राइट यूज रेसिस्टेंट वेराइटीज बोल के चल जाएगा। इट इज नॉट नथिंग रॉन्ग विद दैट, बट अगर रॉन्ग वेराइटी नाम लिख दोगे तो वो गलत पॉइंट है। देन फिजिकल एंड मैकेनिकल मेथड्स, सो लाइट ट्रैप्स यूज कर लो तुम। ओके, येलो इन केस ऑफ हम लोग जो व्हाइट फ्लाइज हैं उनके केस में येलो पेपर यूज करते हैं विच इज लेस्ड विद ग्रीस। ओके, तो डिफरेंट फिजिकल मेथड्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड। एंड बायोलॉजिकल मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल मेथड में इफ ए पर्टिकुलर पेस्ट हैज ए बायोलॉजिकल एजेंट, माइक्रोबियल एजेंट हो सकता है या फिर वो इंसेक्ट पैरास्टॉइड हो सकता है। इफ इट हैज ए बायोलॉजिकल एजेंट देन यू हैव टू डेफिनेटली राइट इट। ये बाकी जो है पॉइंट्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट वाला तुम्हारा बायोलॉजिकल मेथड है। बिकॉज कमिंग टू केमिकल मेथड्स, अरे 2-3 पेस्टिसाइड के नाम तो सबको याद रहते हैं एंड 2 to 3 ml पर लीटर जनरल डोसेज होता है, तो 2-3 नाम तो कोई भी लिख देता है, राइट। ये केमिकल मेथड्स इतना ज्यादा वेटेज इसको नहीं मिलेगा, बट मेन जो है तुम्हारा बायोलॉजिकल एजेंट का नाम करेक्टली लिख के उसका स्पेलिंग करेक्ट लिखोगे, देन यू विल गेट गुड मार्क्स। ये वाला पॉइंट छोड़ दिया तुमने, बायोलॉजिकल एजेंट नहीं लिखा, कल्चरल, फिजिकल और केमिकल कितने भी पॉइंट लिखो तुमको 2 या 3 मार्क्स मिलेंगे, मैक्सिमम 2 मार्क्स मिलेंगे। पर अगर तुमने अच्छे से लिखा है बायोलॉजिकल जो एजेंट्स हैं, देयर आर 2 to 3 बायोलॉजिकल एजेंट्स एंड यू हैव रिटन ऑल ऑफ देम, देन यू विल गेट गुड मार्क्स। साइंटिफिक नेम लिख के बायोलॉजिकल एजेंट नाम करेक्ट लिख के अगर तुमने दिया है तो 10 में से 8 या 9 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। अगर साइंटिफिक नेम नहीं लिखा है तो 3 मार्क्स तो वैसे ही गए, बायोलॉजिकल एजेंट का भी नहीं लिखा है तो 10 में से 2 या 3 मार्क्स मिलेंगे। आप कितना भी अच्छा लिख लो, 2-3 मार्क्स मैक्सिमम। ओके, सो इंपॉर्टेंट है। नाउ
लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स. मैं यहां पर लेपिडोप्टेरा का एक एग्जांपल दे रहा हूं, हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा का. सो अमेरिकन बोलवॉर्म. सो बोलवॉर्म्स आर पेस्ट ऑफ कॉटन. ओके, जो बीटी वेराइटी जो है तुम्हारा कॉटन का, वो मेनली डेवलप ही इसलिए किया गया था क्योंकि बोलवॉर्म्स का प्रॉब्लम था. नाउ दीस बोलवॉर्म्स व्हाट दे डू, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बोलवॉर्म्स. ये जो है ये अमेरिकन बोलवॉर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा है. देन देयर आर इजिप्शियन बोलवॉर्म्स, एरियास विटिल्ला, एरियास इंसुलाना, जो भिंडी में भी आते हैं. देन वी हैव पिंक बोलवॉर्म, पेक्टिनोफेरा गॉसिपिल्ला, पिंक बोलवॉर्म है. सो ये वाला जो बोलवॉर्म है ये क्या करता है, अमेरिकन बोलवॉर्म, इट कीप्स इट हेड इनसाइड, अपना सर अंदर. जो बोल है, बोल इज द फ्रूट, बोल है वो, बोल जो है वो फ्रूट है कॉटन का. कॉटन में इकोनॉमिक प्रोडक्ट क्या है, इट इज द फाइबर. वो फाइबर कहां से आता है, सीड हेयर. जो सीड का जो हेयर है दैट इज द इकोनॉमिक प्रोडक्ट. जब सीड कहां होगा, फ्रूट के अंदर होता है. अगर फ्रूट ही डैमेज हो गया तो सीड विल बी डैमेज्ड एंड अल्टीमेटली योर yield will be reduced. So जो बोल है, बोल इज द फ्रूट इन कॉटन, तो बोल के अंदर घुस जाते थे. तो ये पिंक बोलवॉर्म, जो पिंक बोलवॉर्म है या इजिप्शियन बोलवॉर्म है, दे एंटर इनसाइड एंड दे विल प्लग द होल. अंदर घुस के होल बना के अंदर घुस जाते हैं और होल को एक्सक्रीटा, अपना जो एक्सक्रीटा है उससे बंद कर देते हैं, प्लग कर देते हैं. नाउ तुम कितने भी कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर लो, कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड मींस इंसेक्टिसाइड विल वर्क ओनली व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द इंसेक्ट. वो छुएगा तभी उसके ऊपर एब्जॉर्ब करेगा एंड देन इट विल एक्ट. सो अब ये तो बॉल के अंदर बैठा है, इट इज इनसाइड द बॉल, तो बाहर से तुम कितना भी स्प्रे कर लो इट विल नॉट बी अफेक्टेड. तो इसीलिए इन बॉलवॉर्म्स का प्रॉब्लम था, इसलिए बीटी कॉटन इंट्रोड्यूस किया गया बॉल गार्ड के नाम से. बॉल गार्ड, जो बॉल्स को गार्ड करेगा या प्रोटेक्ट करेगा, बॉल गार्ड. ओके, सो बीटी कॉटन वाज स्पेशली इंट्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ दीज पेस्ट. सो अमेरिकन बॉलवॉर्म और हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा, दैट इज द साइंटिफिक नेम. सो तुमको एग्जाम में भी ना कॉमन नेम देंगे. सो एग्जाम में तुमको कॉमन नेम देंगे और तुमको साइंटिफिक नेम लिखना है. जैसे चिकपी पॉड बोरर, याद है प्रीवाईक्यू में दिखाया था, चिकपी पॉड बोरर. तो चिकपी पॉड बोरर इज बेसिकली योर ग्राम पॉड बोरर. चिकपी को हम लोग ग्राम भी बोलते हैं, बंगाल ग्राम और चिकपी इज द सेम थिंग, तो ग्राम पॉड बोरर भी बोलते हैं उसको. सो दैट इज हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा. अगेन हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा जो है ये पॉलीफैगस है, ये बहुत सारे क्रॉप्स के ऊपर अटैक करता है. तो कॉटन में जब अटैक करता है वी कॉल इट अमेरिकन बॉलवॉर्म. व्हेन इट अटैक्स चिकपी वी कॉल इट ग्राम पॉड बोरर और चिकपी पॉड बोरर. जब वो टोमेटो को अटैक करता है, टोमेटो को भी अटैक करता है, टोमेटो को अटैक करता है तो हम लोग बोलते हैं फ्रूट बोरर, टोमेटो फ्रूट बोरर. तो अलग अलग नाम है अलग अलग क्रॉप में. सो दे विल गिव यू द कॉमन नेम, यू हैव टू राइट द साइंटिफिक नेम. तो ये भी याद रखना है. अगर तुमको हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा पता है लेकिन वो उसी को हम लोग पॉड बोरर बोलते हैं, चिकपी पॉड बोरर बोलते हैं, अगर ये नहीं पता है तो कैसे लिखोगे. सो कॉमन नेम एंड साइंटिफिक नेम दोनों पता होना चाहिए आपको, ठीक है. सो दिस इज अमेरिकन बोलवॉर्म, हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा. ये लेपिडोप्टेरा से बिलोंग करता है, मॉथ है. तो द कैटरपिलर और द लार्वा इज द डैमेजिंग स्टेज. सो डैमेज सिम्टम्स कैसे आएंगे, यू सी, यंग लार्वा feeds on the leaves for some time and then attacks the squares and balls. So ये क्या है, वेजिटेटिव स्टेज में भी अटैक करता है, फ्लावरिंग स्टेज में भी अटैक करता है. सो इट विल फीड ऑन द लीव्स फॉर सम टाइम. फिर जब फ्लावरिंग में आ जाएगा, अनओपन्ड फ्लावर बड जो है उसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर. स्क्वायर इज द फ्लावर बड. सो स्क्वायर्स पे अटैक करता है. फिर बाद में जब पॉलिनेशन होके जब वो फ्रूट्स बन जाते हैं, दैट इज कॉल्ड बॉल. बॉल पे अटैक करता है बाद में, राइट. So internal tissues are eaten severely and completely hallowed. अंदर पूरा खोखला बना देता है, balls को खा लेता है. And ultimately जब severe damage होता है तो balls will shed and drop, ultimately affecting the yield. So while feeding, the caterpillar thrusts its head inside, leaving the rest of the body outside. तो ये थोड़ा ना OCD है इस इंसेक्ट को, थोड़ा cleanliness freak है. अपना सर अंदर घुसाएगा फ्रूट के अंदर. You can look at the diagram. इस तरह से बॉडी बाहर है, सर अंदर है, इट्स हेड इज इनसाइड. तो अपना सर अंदर घुसाता है, खाता है एंड बाहर एक्सक्रीट करता है. सो क्लीनलीनेस फ्रीक है ये थोड़ा. बाकी जो बोलवॉर्म्स है वो अंदर ही खाते हैं, अंदर ही एक्सक्रीट करते हैं. ये ऐसा नहीं है, ये जिस थाली में खाता है वहां पर वो नहीं करता है, तो इट विल एक्सक्रीट आउटसाइड. थोड़ा ओसीडी है इस इंसेक्ट को, ठीक है.
So it feeds on the leaves, shoots and buds. One of the symptom is prematurely opened squares. तुम्हारा फ्लावर बड जो है वो ओपन हो जाता है. Bolls are bored at the base and hollowed out. Ultimately it will lead to shedding of the balls. Balls ना गिर जाते हैं. Prematurely they will shed. अब फ्रूट ही गिर गया है तो उसमें सीड भी गया काम से, तो इट yield will be affected. ठीक है. So premature ball opening and shedding is one of the main symptom. So management में आओगे तो coming to the management, main points क्या है management में? So again cultural method, mechanical, physical method, फिर biological method and then last में chemical method, right? So destruction of crop residue, so cleanliness maintain करो field में. Hand picking of the grown up larvae ये physical method है. Encouraging crop rotation, same crop लगाते रहोगे तो field में ही रहेगा pest. So if you go for crop rotation, the chances of infection will be less. क्योंकि crop rotation में क्या है, crop rotation में एक और principle है, you don't go for rotation, you don't go with rotation with crops which are belonging to same family. तो हम लोग कभी भी जब rotation करते हैं, we don't go with the crops of same family. अलग अलग family का crops को हम लोग rotate करते हैं, जैसे legume हो गया और कोई cereal crop हो गया, because same family अगर crop rotate करोगे तो chances है कि वही pest तुम्हारे next crop को भी attack करें. सेम फैमिली से बिलोंग करता है तो जो केमिकल नेचर है प्लांट्स का, जो उसमें अल्कलॉइड्स या जो भी केमिकल्स है वो सिमिलर होते हैं. सो बहुत सारे ऐसे पेस्ट होते हैं जो एक ही फैमिली के क्रॉप्स को अटैक करते हैं, ओलिगोफैगस पेस्ट बोलते हैं. सो जनरली इन क्रॉप रोटेशन वी गो विद द क्रॉप्स फ्रॉम टू डिफरेंट फैमिलीज. देन निपिंग टर्मिनल बड्स व्हेन 16 to 18 सिम्पोडियास और ब्रांचेस. 16 to 18 जब ब्रांचेस आ गया तो टर्मिनल बड को हम लोग निप कर देते हैं ताकि egg load कम हो जाए. तो these Helicoverpa have this habit to lay the eggs at the tips of the plants. Branches के टिप पे अंडे देता है. So growing intercrops to reduce the insect pest load. So growing intercrops or going for crop rotation. So intercrop से क्या होगा कि Helicoverpa का जो natural enemies हैं, natural enemies as in the case of insect parasitoids या फिर तुम्हारे कोई और माइक्रोबियल एजेंट्स हैं, सो दे विल प्रोवाइड शेल्टर फॉर द नेचुरल एनिमीज. तो ये जो इंटरक्रॉप्स हैं वो शेल्टर प्रोवाइड करेंगे तुम्हारे नेचुरल एनिमीज को. देन ग्रोइंग सोरगम और मेज इन 4 rows ऑल अराउंड द कॉटन एज ए गार्ड क्रॉप. सो दे विल एक्ट एज ए बैरियर सो दैट पेस्ट विल नॉट इजीली एंटर इनटू द फील्ड. तो फील्ड के चारों तरफ हम लोग 3 to 4 rows of maize grow करते हैं because it is a taller crop and it will act like a barrier to prevent the movement of pest. Then so use ovipositional trap crops. तुम trap crop भी यूज कर सकते हो, जैसे मैरीगोल्ड है. So Helicoverpa के केस में स्पेशली टोमेटो में हम लोग ये यूज करते हैं. टोमेटो एंड चिल्ली के केस में we use the marigold as a trap crop for Helicoverpa. Helicoverpa का ज्यादा प्रेफरेंस है, it will prefer marigold over any other crop. So वो अपने अंडे पहले मैरीगोल्ड पे ले करेगा. जैसे ही तुम मैरीगोल्ड पे पेस्ट को देखते हो, as soon as you see that pest has arrived, you spray insecticide and kill the insect pest Helicoverpa on marigold ताकि लोड कम हो जाए बाकी क्रॉप पे, पेस्ट पॉपुलेशन को रिड्यूस करने के लिए. So you can go for trap crop. Erecting of bird perches, तो बर्ड्स को बैठ के इंसेक्ट्स को ढूंढने के लिए. So you erect bird perches so that birds will look for the insects. लार्वा अगर कहीं दिख जाएगा तो उसको खा लेगा. So माइना या फिर तुम्हारा जो है ड्रोंगो, these birds they are predators of these insects. Growing early maturing and tolerant varieties, ये वाला कल्चरल मेथड है. इस पॉइंट को थोड़ा आगे लिख सकते हो आप ये लोग. Installing pheromone traps. Okay, so pheromone traps will attract Helicoverpa के केस में जो फेरोमोन है, फीमेल फेरोमोन जो है हेलील्यूर बोलते हैं. So it will attract the males and you can capture the males. फिर मेल्स को कैप्चर करके मार दोगे तो फीमेल के साथ कॉपुलेशन करने के लिए मेल्स होंगे नहीं, तो ओवरऑल पॉपुलेशन लोड विल रिड्यूस.
तो ये जो पॉइंट्स हैं, आई हैव टेकन दीज पॉइंट्स फ्रॉम एंग्रू मटेरियल, मैंने ये एंग्रू के मटेरियल से पॉइंट्स लिए हैं, ठीक है। यू कैन यूज एनी मटेरियल, टीएनयू का मटेरियल ले लो, एंग्रू का मटेरियल ले लो, या फिर डीएस रेड्डी की किताब है उसमें से भी ले सकते हो। सो यू कैन यूज एनी बुक, ओके। वसंत राज डेविड का एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी, वहां से भी ले सकते हो। यू कैन रीड एनी मटेरियल, बट यू हैव टू फॉलो दिस सीक्वेंस कि पहले तुम कल्चरल मेथड्स, फिर फिजिकल मैकेनिकल, देन बायोलॉजिकल, आफ्टर बायोलॉजिकल यू हैव टू मेंशन द केमिकल मेथड। सो रिलीजिंग एग पैरास्टॉइड्स, सो हम लोग अभी बायोलॉजिकल मेथड्स में आ गए। ट्राइकोग्रामा किलोनिस at weekly interval at the rate of 1.5 lakh per hectare, or release second instar larvae of Chrysoperla carnea at the rate of 1 lakh per hectare at 75 and 90 days after sowing. So Trichogramma kilonis, okay, and Chrysoperla carnea, ये एक पैरास्टॉइड्स हैं। Application of nuclear polyhedrosis virus NPV, so 200 larval equivalent LE per acre in combination with Jaggery 1 kg and Sandovit, ये क्या करता है ना, these are sticking agents, ये चिप जब तुम स्प्रे करोगे तो चिपक जाता है लीफ के ऊपर, गिरेगा नहीं, ओके। सो यू कैन गो फॉर these biological agents. Then we have egg parastoids के बाद larval parastoid है, okay, Campylodis chloridae, Diadegma fenistalis, Bracon brevicornis, these are larval parastoids, larval stage में जो attack करते हैं। And ETL, okay, ETL you don't have to write because सारे crops का ETL याद रखना मुश्किल है। हर एक पेस्ट का डिफरेंट क्रॉप में डिफरेंट ETL होता है। एवरी पेस्ट ऑन एवरी क्रॉप हैज अ डिफरेंट ETL, सो ETL याद नहीं रहेगा। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, इट इज द पॉइंट वेयर यू हैव टू गो फॉर केमिकल एप्लीकेशन, ओके। ETL के नीचे रखना है पॉपुलेशन को, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से नीचे रहेगा पॉपुलेशन, तब ज्यादा लॉस नहीं होता है। यू हैव टू मेंटेन द पॉपुलेशन बिलो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। If it goes beyond it, it will soon reach economic injury level. फिर कंट्रोल करके भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। सो ये याद रखने की जरूरत नहीं है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल कितना होता है। सो 5% ऑफ डैमेज ऑफ बोल्स और वन एग पर प्लांट और वन लार्वा पर 10 प्लांट्स, दैट विल बी कंसिडर्ड एज ETL। जब तुमको एक लार्वा 10 प्लांट्स में एक लार्वा दिख गया, आई मीन per 10 plants, even if you have one larva per 10 plants, that is ETL. Or if you have 5% damaged bolls in the field, तुम देखो फील्ड में अगर 5% damaged bolls है तो you have to go for the chemical spray. So in severe incidents के केस में then you go for chemical sprays. Indoxacarb 1 ml per liter, or Spinosad 0.3 ml per liter, or Emamectin benzoate 0.5 grams per liter after collecting the late instars. So नाउ यू नो कि सीक्वेंस क्या है। नाउ यू हैव एन आइडिया कि भैया क्या सीक्वेंस में हम लोग इंसेक्ट पेस्ट का जो मैनेजमेंट है वो कैसे लिखना है। सो ये दिस इज द डैमेजिंग सिम्टम्स। देन मैनेजमेंट में यू गो विथ कल्चरल मेथड्स, मैकेनिकल एंड फिजिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड, देन एट लास्ट यू गो फॉर केमिकल मेथड। दैट इज द सीक्वेंस यू हैव टू फॉलो व्हाइल राइटिंग द आंसर। तो ये है, साइंटिफिक नेम के बिना लिखना मत, पर अगर फर्स्ट या फिफ्थ क्वेश्चन में आता है कंपलसरी है, देन यू हैव नो चॉइस, ओके। दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू रिमेंबर इफ यू वांट टू इजीली अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ डैमेज, या फिर इसको इजीली रिमेंबर करना है तो ये वाला पॉइंट्स तुमको याद रखना है। व्हाट काइंड ऑफ माउथ पार्ट्स एंड विच इज द डैमेजिंग स्टेज इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर कौन सा है और उसमें डैमेजिंग स्टेज या माउथ पार्ट्स कौन सा है। सो जनरली दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स। उनमें फिर यू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट का नाम देखते ही, जैसे ये जैसिड बोलते हैं, तो जैसिड बोलते ही ओके ये हेमिप्टेरा से बिलोंग करता है। हेमिप्टेरा में कौन से माउथ पार्ट्स हैं वो याद होना चाहिए तुमको। डैमेजिंग स्टेज कौन सा है वो याद होना चाहिए, देन इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू, ओके। सो दीज वर द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, ओके। नाउ अभी एक अल्टीमेट क्वेश्चन पे आते हैं ना। इतना सब देखने के बाद
सर वेटेज तो बहुत कम है, 10 मार्क्स या 15 मार्क्स का आता है मैक्सिमम, और इतने सारे क्रॉप्स हैं, फिर उसमें एक एक क्रॉप में बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट हैं। सर इज इट वर्थ इट? बहुत सारे सर छोड़ सकते हैं क्या? देखो छोड़ सकते हो, बट थोड़ा सा रिस्क है इसमें भी। अगर ये छोड़ रहे हो तो बाकी चीजें तुम अच्छे से पढ़ना है। बहुत लोग ये पूछते हैं सर क्या हम लोग वो क्रॉप्स जो है ना, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, उनको छोड़ सकते हैं क्या? देखो छोड़ने को तो छोड़ दो, बाकी सब कुछ तुमको पढ़ना है। और कभी कभी बैड लक ऐसा होता है कि हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स ना 2-3 क्रॉप्स दे देते हैं एक बार में, सो 45 to 50 मार्क्स आ जाता है कभी कभी एग्जाम में, सिर्फ क्रॉप्स। सो जिसको मैंने बोल दिया कि ठीक है, अगर तुम, बिकॉज remembering all the crops, flower crops, fruit crops, vegetable crops, medicinal, aromatic crops, plantation, ये सब पढ़ के उसका स्पेसिंग, सीड रेट, प्रोपगेशन, ये सब याद रख के बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, एंड बहुत ज्यादा अब याद भी नहीं रख पाओगे, बहुत सारी चीजें भूल जाओगे। सो जनरली वहां पर भी 15 मार्क्स तक आता है या फिर 20 मार्क्स मैक्सिमम आता है क्रॉप में, पर कभी कभी तुम्हारा बैड लक हो गया तो ज्यादा मार्क्स आ जाएगा। पर अगर तुम इंसेक्ट पेस्ट छोड़ रहे हो, इफ यू आर स्किपिंग इंसेक्ट पेस्ट एंड इफ यू आर स्किपिंग क्रॉप्स, ज्यादा रिस्क हो जाएगा, रिस्क, देयर विल बी लॉट ऑफ रिस्क। पर और कुछ नहीं छोड़ सकते फिर तुम, प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स, सीड साइंस, वो सब परफेक्ट होना चाहिए, बिकॉज चॉइस तो है, आउट ऑफ 8 यू हैव टू राइट 5। बट अगेन अगर तुम हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स भी स्किप कर रहे हो, इंसेक्ट पेस्ट भी स्किप कर रहे हो, तो तुम डिजीज स्किप नहीं कर सकते। डिजीज अच्छे से करना पड़ेगा, सीड साइंस, फिजियोलॉजी, बाकी कोई सब्जेक्ट में बिल्कुल भी लैकिंग नहीं होना चाहिए, वो परफेक्टली आना चाहिए, देन यू कैन गो फॉर दिस। तो तुम इंसेक्ट पे स्किप कर सकते हैं क्या, क्योंकि लास्ट 3 साल से वेटेज भी नहीं है। हाँ कर सकते हो स्किप, लेकिन अगर फर्स्ट या 5th क्वेश्चन में आ गया तो फंस जाओगे। तो इसका परफेक्ट आंसर मैं भी नहीं दे सकता कि स्किप करें या ना करें। अब देखो रिस्क के ऊपर है, क्या तुम रिस्क लेना चाहते हो? इज इट वर्थ इट? 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, बाकी सब मैं अच्छे से पढ़ लिया है, सिर्फ ये इंसेक्ट पेस्ट छोड़ दूंगा। अगर बाकी सब कर लिया है, सिर्फ इंसेक्ट पेस्ट छोड़ना चाहते हो तो ओके, गो फॉर इट, छोड़ दो, क्योंकि इतना ज्यादा एफर्ट्स मैं बाकी एरिया में दे दूंगा सर, अगर ऐसा है तो यू कैन गो फॉर दैट। ओके, थोड़ा रिस्की है, बट इफ यू आर गुड विथ रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स then you can skip it. Okay, so I hope this video will help you in studying insect pest. अगर मुझसे पूछोगे तो देखो इंपॉर्टेंट इंसेक्ट पेस्ट तो पता होने चाहिए, स्पेशली हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए। एग्जाम में हॉर्टिकल्चर क्रॉप से भी पूछता है, सो जितना हो सकता है, जितने सारे के सारे पढ़ना है ऐसा जरूरी नहीं है, एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, राइस, वीट, सम इंपॉर्टेंट पल्सेस, कुछ 2-3 पेस्ट, सबका इंपॉर्टेंट पेस्ट तुमको पता होना चाहिए। ओके, एग्जाम्पल देने के लिए भी। सो अब डिपेंड करता है कि या तुमको लगता है कि तुम इतना एफर्ट्स कर पाओगे तो ठीक है पढ़ो, नहीं सर इतना मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ, बहुत टाइम जाता है इसमें, देन स्किप इट। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल। सो वी विल ऑल्सो डू ए वीडियो ऑन diseases. Okay, so diseases of agricultural crops, उसमें क्या क्या टिप्स हैं वो हम लोग देखेंगे। Okay, so that will be all for this video. Thank you very much.